welcome. I'm Neha Bajaj and tonight I'm at the black carpet of Filmfare OTT Awards 2025 और मेरे साथ एक ऐसी अदाकारा है जिनको हमने देखा है, पसंद किया है और जो भी रोल करती हैं बहुत अच्छे से करती हैं, रसिका दुग्गल। Thank you for having me. रसिका बहुत अच्छी लग रही हैं। I really like your outfit today. Thank you. Thank you. Okay, जैसे मैंने आपको बताया आपकी जो सीरीज थी आउट ऑफ लव वो मेरी बहुत बहुत फेवरेट है और मैंने बहुत लोगों को रेकमेंड भी करी है वो। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी सीरीज नॉमिनेट हुई हैं, आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? Lots of series that I've watched, but I've been nominated for Shekhar Home, so I'm really looking forward to that. Yeah. अच्छा, लेकिन उसके अलावा कोई और सीरीज? Oh, lots of them. Dabba Katl, I really enjoyed watching. Manvi's show, half arranged, half love. Yeah. So yeah, those. Okay. और अगेन कोई एक ऐसी सीरीज या फिल्म ओटीटी पर जो आपने देखी और आपको ऐसा लगा हो कि यार इसको तो थिएटर डिजर्व करता था, ये तो थिएटर पे रिलीज होनी चाहिए थी? Family Man season 3. I think it had scale and it was cinematic. Yes. Okay. So रसिका, अगेन मैंने तो आपको कोविड में सबसे ज़्यादा देखा है ओटीटी ठीक है, बट पर्सनली आपको थिएटर में जाना ज़्यादा पसंद है या आप भी घर में मुझे नहीं पैसे खर्चने में तो ओटीटी पे देख लूँगी? एक्चुअली दोनों अलग एक्सपीरियंसेस है. कभी कभी मन करता है कि आप जाओ और एक कैप्टिव ऑडियंस बनो, कि कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो और बस मतलब अंधेरे थिएटर में बैठ के आप फिल्म देख रहे हो. और कभी कभी ये भी मन करता है कि एक्सेसिबिलिटी हो, कि आप घर में बैठ के जब मन चाहो कुछ देख सको. अगर रिवाइंड करना चाहो तो रिवाइंड कर सको, कुछ वापस दोबारा देखना तो वो देख सको. सो वो भी एक तरह का व्यूइंग है. सो बट आई लाइक बोथ एक्चुअली, लिटिल बिट ऑफ बोथ. या कुछ क्विक क्वेश्चंस जो मैं आपसे अब पूछने वाली हूँ. वन ओटीटी शो यू विश यू वर अ पार्ट ऑफ अदर देन योर्स? डब्बा काटल. Okay. One co-actor who surprised you most on the set? KK Menon, because I thought he was a very serious person, but he's full of jokes. Okay. So, are you a retake perfectionist or a one-take magic? Retake perfectionist. I have to sometimes beg for an extra take, which I do. Okay. So, dark roles or light-hearted characters? Light-hearted ones. I'm really wanting some like that. Yeah. So, one compliment from the industry that always stayed with you? That my work has versatility. Okay. So, one criticism that actually helped you to grow? That I can't get caught up in something that's not working. Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you. Lovely to meet you. मेरे साथ हैं सुरवीन चावला. Thank you so much. So, सुरवीन, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्म्स हो, चाहे ओटीटी हो, हर जगह राज किया है आपने. If you can say so. कहीं तो होगा. डेज से लेकर राणा नायडू एंड देन हर मतलब बहुत सारी फिल्म्स में भी हमने आपको देखा. सो आज किस ओटीटी के लिए आप रूट कर रही हैं? मैं तो खुद के OTT के लिए रूट कर रही हूँ इस बार. I've had 4 incredible shows this year, so I'm rooting for all of them, and I'm rooting for every other show that has stayed true to its existence, and to every show that's just presented great content. So I'm rooting for just great content. Just great content. Absolutely. और अगेन जैसे मैंने बोला कि आपने हर एक्चुअली प्लेटफॉर्म को अच्छे से एक्सप्लोर किया है. आपका फेवरेट मीडियम क्या है? आई नो हर एक्टर बोलता है कि मुझे एक्ट करना है, मेरे लिए मीडियम मायने नहीं रखता है, बट टीवी, ओटीटी, फिल्म, कौन सा शूट करना ज़्यादा टैक्सिंग है, इंटरेस्टिंग है या किसमें ज़्यादा मजा आता है? Let me break this down. I think television सबसे ज़्यादा taxing है, and I was lucky enough to train. That became my training ground. Film, I feel, is a little more relaxed. You get time. आपको वक्त मिलता है. Whether it's scene by scene या dialogue to dialogue also, आपको मतलब थोड़ी सी liberty ज़्यादा, काफ़ी liberty ज़्यादा in fact. OTT is grueling simply not because of the medium, but because of the format. So you're staying with one character for the longest time, which is the duration of the shoot, because one show could be equivalent to 2-3 films. So keeping that in mind, to just stay in character even when you're coming back on set after maybe a month, maybe 2 months, I think that for me is very, very challenging, and I find that very interesting.
how you get back into the skin, you know, after having gaps. I find that interesting. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. और सुरीन, ऐसा बहुत बार होता है कि यू नो व्हेन एक्टर्स डू ओटीटी या फिल्म्स, वो वापस कभी दोबारा टीवी में नहीं जाना चाहते. क्या आपने ऐसा सोचा या आपको लगा कि नहीं कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो आई विल डू इट? Yeah, I think for that a lot of things need to change as far as television is concerned. क्या आप अभी आंसू बहाना चाहेंगी ग्लिसरीन लगा के? No, but you also have to realize that the audience that OTT caters to is slightly नहीं, quite different from what television is catering to, and I don't think इसका मेल हो सकता है. Some strata, yes, मेल हो सकता है. They might overlap somewhere, but majority of the television audience are very happy watching what they're watching because that's their conditioning, that's their ecosystem, that's their environment. OTT, I think, are people with a little more. I'm going to be a little conservative in saying that. A little more. They're exposed to a lot more in terms of, you know, what's happening globally. So I feel like the audience overlaps, but it's not completely different. So an actor who surprised you most on the sets, आपने इतने सारे actors के साथ काम किया है. Pankaj Tripathi. Okay. You would think he'll come with a lot of baggage, and he's just the opposite. You think he will, you know, वो कहते हैं ना, एक senior है, एक mentor है, मतलब level ही अलग है उनका. You think he'll come with all of that, but no, he's like you and me and like anybody else. उनका आपको सजेशन देने का तरीका भी ऐसा है कि वो आपको ये नहीं महसूस कराना चाहते कि वो आपको सजेशन दे रहे हैं. Okay. I find that beautiful. I find that human being only beautiful. Beautiful. क्या बात. Such a wonderful, such a beautiful human being. और we'll make sure हम उनको ये बात जरूर बताएंगे. बताएं. और मेरा आए हैं अभी तक? हाँ, अभी तक तो नहीं आया. I hope आए तो please बताना उन्हें. So my last question, सुरवीन, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं और क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं. तो कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट और क्रिटिसिज्म जो आपके साथ आज तक है, किसी ने कुछ ऐसा बोला? Compliment, yeah. I recently got a compliment saying that you're like a chameleon. When you're doing parts, you're like a chameleon. So I think that there cannot be a bigger compliment than that. Criticism, I think काफी वक्त पहले बोला गया था कि जब आपको बॉक्स कर देते हैं ना कि आप इसी किस्म के रोल कर सकती हैं, तो वो ना ऐसे चुभती है बात. तो वो चुभी थी, पर उसको बहुत वक्त हो गया है. बहुत वक्त हो गया. आपने तो गलत भी प्रूव कर दिया है आप सबको. Alright, thank you so much for talking to us, Sarveen. Thank you. मेरे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिनके स्क्रीन पर आते ही हमें पता होता है कि हमें बहुत अच्छा लगने वाला है और कुछ अच्छा भी दिखने वाला है. ना देन दीपक डोबरियाल, वेलकम. थैंक यू नेहा, थैंक यू. ओके, आज बड़े सीरियस से आप लग रहे हैं. ऐसा क्यों? आप वो, मुझे तो आपका तनु वेड्स मनु वाला जो डायलॉग है वही याद आ रहा है. तो मेरा कोई क्वेश्चन हर्ट तो नहीं कर रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. किसी का क्वेश्चन हर्ट नहीं करता मुझे. हाँ. ओके, बट यू लुक वेरी हैंडसम टुडे. एंड आज किस ओटीटी को सबसे ज्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं? ओटीटी यस. कौन सी सीरीज इस साल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? यार, क्या देखा? थोड़ा ही देखा है मैंने तो सीरीज में. थोड़ा में क्या देखा यार? अब ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट. ब्लैक वॉरेंट. हाँ, ब्लैक वारंट देखा. पाताल लोक ये वाला मिस हो गया. आई सी इट. ब्लैक वारंट देखा. हाँ, आई सी इट. वो भी नहीं देखा यार. वो भी नहीं. उसके भी रीजन है यार. मतलब पहले जब बन रहा था तो मैं उसके लिए कहीं पे था. अच्छा. हाँ, तो फिर वो प्रोजेक्ट बदला, डायरेक्टर बदले, तो वो वाला भी हो जाता है कई बार थोड़ा सा ना. तो वो देखा. ब्लैक वारंट मेरे को बहुत पसंद आया. विक्रम मोटवानी का, बहुत ही बढ़िया. एक डार्क सब्जेक्ट है और उसमें है ना, तो सब एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया उसमें. वो बहुत अलग था, भलता हुआ. और भी कुछ देखा है. हालांकि मैं पूरा 6 महीने काम पे ही हूँ इधर उधर. तो और क्या है यार, अभी सिंगल पापा भी आई थी कुणाल खेमू की. सिंगल पापा मेरी वाइफ देख रही है. देख रही है? हाँ, वो कल वो देख रही थी. हाँ, कल वो देख रही थी. ओके. है ना, वो है. और भी हैं यार, बहुत सारे हैं. बट वैसे आपको हॉल पे पिक्चर देखना ज्यादा पसंद है या अपने घर के कंफर्ट पर एक अच्छी ओटीटी सीरीज हो वीकेंड पे? यार, हॉल पे. पे. मतलब ओटीटी पे भी, लेकिन अगर पूरा अच्छा बनाओ, पूरी नीयत अच्छी हो, सारे एक्टर अच्छे हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो और मेकिंग भी लेवल की हो. ऐसे नहीं कि जल्दबाजी वाला. तो कहीं पे भी हो, चाहे ओटीटी हो चाहे सिनेमा. पर सिनेमा में क्या है ना कि
जो आपकी बगल की सीट पे कौन बैठा है, एक अलग अनजान आदमी, और आप और वो एक साथ मिलके जोशो खरोश से फिल्म को एंजॉय करते हो, वो वाला फील नहीं है। मतलब फिल्म जो है वो जश्न का सब्जेक्ट है और ओटीटी जो है वो डिटेलिंग का सब्जेक्ट है। अगर आपके पास डिटेलिंग है हर डिपार्टमेंट के, तो वो बहुत बढ़िया ओटीटी होगा। Absolutely. और इतने अच्छे से हमें और कोई समझा भी नहीं पाता ये बात जैसे आपने बताई है। अच्छा, अगेन बहुत बार ऐसा है कि इतनी सारी ओटीटी सीरीज आपने देखी, अभी पिछले 4-5 साल से तो ओटीटी का ही दबदबा है। कोई एक ऐसी फिल्म या सीरीज देख के आपको लगा कि यार इसको तो थिएटर पे रिलीज होना चाहिए था, ये तो थिएटर मटेरियल है? यार ऐसे तो मेरी ही फिल्म है सेक्टर 36, तो वो लगता है ना बहुत कुछ है। गुड लक जेरी, तो उनको लगता था कि ये दोनों फिल्में रिलीज होनी चाहिए थी। खैर बट सभी रिलीज होनी चाहिए फिल्म है ना। सेक्टर 36 को इतना प्यार मिला, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, ऐसा सोचा था आपने? नहीं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस मिला है सबसे। मतलब उसने एक अलग इमेज पेश कर दी मुझे, तो ये है। और बहुत शुक्रगुजार हूँ उस फिल्म का, उस पूरी टीम का, है ना, जिन्होंने भी उसे प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, सारी टीम ने। तो मतलब मुझे फिर से खड़ा कर दिया इंडस्ट्री में, ऐसा लगता है हर बार। तो पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। ओके। और अभी फिलहाल एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट कर चुकी है, धुरंधर। धुरंधर देखी आपने? हाँ, धुरंधर देखे ना। कैसी लगी आपको? किसका किरदार बहुत अच्छा लगा? यार बहुत ही बढ़िया, सभी बढ़िया हैं, पर अक्षय तो अक्षय है फिर, है ना, तो वो जो है तो बहुत ही प्यारा रोल किया है उन्होंने। और अगर आपको हाइपोथेटिकली अनुमान लगाएं कि आपको धुरंधर में कोई एक कैरेक्टर अपने लिए पिक करना होता कि ये मैं बहुत ही अच्छा करता, आप कौन सा कैरेक्टर चुनते? किसका? मैं वही रहमान डकैत। अच्छा, रहमान और डकैत तो फिर उससे कम तो ना, उससे कम नहीं। या कोई भी मिलता, कोई भी तो नहीं करता हूँ मैं आजकल। पहले होता स्ट्रगलर होता तो कोई भी कर लेता, पर अभी आपने तो कोई भी में भी जान डाली हुई है। हाँ, वो तो है, जान तो डालूंगा। फिर कोई कुछ अगर हाँ कर दिया तो फिर तो वो इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो ये वाला है, तो वरना लानत है ना, ऐसा है। तो बट अगर चॉइस के हिसाब से आता तो रहमान डकैत। ओके। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने बात की हमसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ हैं कश्यप शंघारी। वेलकम। Good to meet you, Neha. यू लुक लवली। और हमने मेड इन हेवन में आपको देखा, बहुत पसंद किया। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Film fair is something that as kids we watched, growing up, and there was a dream. हमेशा एक सपना था that you have to be on this carpet. It's different now than what we saw back then, but it's always good to be here. And Jitesh is a good friend, so yes. So, आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सी ओटीटी सीरीज रही इस साल जो आपको लगा वाह मजा आ गया देख के? Black Warrant. Black Warrant? Yeah, Black Warrant. Okay. Hands down for me. और कोई एक ऐसी ओटीटी सीरीज जो आपने देखी और आपको लगा ये तो थिएटर में रिलीज होनी चाहिए थी, ये ओटीटी डिजर्व नहीं करती थी? मैं ये नहीं कह रही ओटीटी कम है, बट Any year? Better Call Saul. Okay. Better Call Saul should also be made into a film or should be there in the theaters. It's a piece of it's a masterpiece. Okay. Everyone should watch it. एंड अगेन कश्यप, हमने मेड इन हेवन में तो आपको देखा ही, पसंद भी किया, बट कोई एक ऐसी सीरीज जो देख के आपको लगा हो कि यार मुझे लगता है आई वुड हैव डन बेटर, आई थिंक दैट रोल वाज मेंट फॉर मी। हमेशा ऐसा लगता है ना देख के? I don't know if I would have done better, but just to have that itself would have been very, very virtuous. So I think I would love to play Robin, जो प्रियांशु ने किया है in Mirzapur. I would love to be Robin. It's such a beautiful character, and to be that, and the way he played it was beautiful. amazing. Yeah, it's fantastic. ओके। कश्यप, अगेन वी से दैट इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते हैं और क्रिटिसिज्म भी मिलता है, तो सबसे फेवरेट कॉम्प्लीमेंट आपका और कोई एक क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो आपको मिला हो फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सन जो आपने इम्प्लीमेंट भी किया? Critical, is it? हाँ. Critical. क्रिटिसिज्म जिससे बोलोगे यार ऐसे नहीं ऐसे। But what about the good compliment? वो भी बताना है आपको। Critical, acha. I think the best compliment that I received, it's not about my craft, but when I met Zoya for the first time, she said, "You have a good smile, and keep smiling more." So since then, I smile more. Okay. Yeah. And Criticism, नहीं, वो नहीं बताऊंगा. okay, पर्सनली आपको किस तरीके के किरदार ज्यादा करना पसंद है? लाइट हार्टेड, डार्क कैरेक्टर्स, या फिर थोड़े से कॉमिक कैरेक्टर्स? I really enjoy comedy, and dark तो वैसे भी बहुत ज़्यादा dark बन रहा है, तो some light-hearted is nice, and to play that is not easy. Okay. And
because सबको लगता है going to the dark place is where, you know, all the craft lies. Maybe, I don't know, at least what I've heard. But yeah, lightheartedness is also very, very nice. एंड पर्सनली व्हाट डू यू एंजॉय मोर? अगर आपको ऑप्शन मिलेगा कि टिकट बुक करो, हॉल में जाओ, पिक्चर देखो, या घर के कंफर्ट पे OTT फिल्म देख लो? I'll go to the theaters to watch Lord of the Rings. Okay. Yeah, the entire 3 series. Yeah, I will. Alright, that's I will quite watch honest. that. Yeah, I will watch. Thank you so much for talking to us. Thank you.